Okay, so hello students, good evening. First of all, good evening. So we'll start this session on the morphology of flowering plants part 2 today. Okay, so part 2 of this session we are going to start, and here are some of the important MCQs which we will be taking today. Right, so the different MCQs what we will be taking today are will be discussed now. So we'll start it without wasting our time. Okay, so the first MCQ what in front of us is the morphological nature of edible part of coconut is. Just wait a second, I would like to check my sound. Yeah, everything is okay. So we'll continue. The morphological nature of edible part of coconut is perisperm, cotyledon, endosperm, or pericarp. So out of this, what do you call morphological nature of edible part of coconut? So coconut generally what you call as it is the liquid endosperm. Later on it solidifies and it's called as the solid endosperm. Then कोकोनट इज व्हाट टाइप ऑफ फ्रूट? कोकोनट को हम किस टाइप का फ्रूट कह सकते हैं? ड्रूप, बेरी, नट और कैप्सूल. Generally if you talk about the coconut, basically you can consider the type of fruit is the seed is called as a nut, but whereas the fruit if you talk about they have this category which is called as the drupe. Okay, so drupe will be the right answer for the fruit. Then axile placentation is present in. Axile placentation is a type of placentation where if you see the TS of ovary, okay, so there are compartments of the ovary like this, and in the center of the axis they have ovules arranged in the center of axis. So we call this type of placentation as axile placentation. So such type of placentation is found in Archimona mexicana, Dianthus, lemon or pea. So if you basically have seen what you call as if you have cut lemon अगर आपने कट करके देखा हुआ है तो आपको पता चल जाएगा कि उसमें एक्साइल प्लासेंटेशन बेसिकली होता है. ठीक है, तो एक्साइल प्लासेंटेशन द राइट आंसर शुड बी हियर lemon. Then the wheat grain has an embryo with one large shield-shaped cotyledon known as. तो shield shaped cotyledon को हम क्या कह सकते हैं? Coleoptile, epiblast, coryza और scutellum. So if you see the structure of maize seed, इसमें एक ऐसा structure आता है यहाँ पे, right? So ऐसा structure आता है. So the hard structure which encloses the seed cotyledon is called as the scutellum. So इसका सही जवाब बनता है scutellum. Then the next question, free central placentation is found in Brassica, Citrus, Dianthus or Argemone mexicana. Again, free central if you talk about here. So free central type of placentation, if you see this is the ovary, this is the structure of TS of ovary, okay, and in the center without any compartments of the ovary they have ovules situated in the central axis. So this type of a placentation is free central type of placentation. So basically in Dianthus you find a free central type of placentation. That's the correct answer for this question. Then the term polyadelphous is related to. Polyadelphous किससे related होता है? Corolla, calyx, gynoecium or androecium. Basically if there are many cluster of anthers, बहुत सारे anthers जुड़े हुए हैं तो उसको हम polyadelphous, poly यानी many, adelphous refers to jointed androecium. So it is basically related to the androecium. Then seed coat is not thin and membranous in. Seed coat is not thin but it is membranous in maize, coconut, groundnut or gram.
So if you talk about maize, it is not thin, it is hard, but it is not membranous. In coconut, basically, if you see in coconut, it's membranous and it is not thin, it is very thick. So B is the right answer. Then China rose, the flowers are, in China rose, the flowers are, what type of flowers do you find in China rose? China rose commonly is called as hibiscus. आप सभी ने देखा है, शू फ्लावर भी कहा जाता है उसको, ठीक है। तो एक्टिनोमॉर्फिक है, हाइपोगाइनस विद ट्विस्टेड एस्टिवेशन होता है, या फिर एक्टिनोमॉर्फिक एपिगाइनस विद वेलवेट एस्टिवेशन होता है, ज़ाइगोमॉर्फिक हाइपोगाइनस विद एम्ब्रिकेट एस्टिवेशन होता है, ज़ाइगोमॉर्फिक एपिगाइनस विद ट्विस्टेड एस्टिवेशन होता है। तो इनमें से कौन सा टाइप का एस्टिवेशन आपको वहाँ पर देखने को मिलता है, ये आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका सही जवाब है वो एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर है, राइट। सो ए उसके साथ हाइपोगाइनस ओवरी होता है, बिल्कुल सही। ट्विस्टेड एस्टिवेशन वहां पर देखा जाता है, तो इसीलिए ए विल बी द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। Coming to the next part, cotyledon of maize grain is called plumule, coryza, coleoptile, scutellum. So cotyledon of maize grain is called as, क्या कहते हैं maize grain को? Plumule, coryza, coleoptile, scutellum. इनमें से क्या कहा जाता है उसको? ये भी आपको थोड़ा सा देख के सोच के समझ के बताना है। cotyledon of maize grain की अगर हम बात करें तो बेसिकली वो एंक्लोज्ड होता है स्क्यूटलम के अंडर, तो इसीलिए इसका सही जवाब बनता है स्कूटलम। ट्राइकार्पलरी सिनकार्पस गाइनोशियम इज फाउंड इन फ्लावर्स ऑफ लिलिएसिए, सोलनेसिए, फैबेसिए, पोएसिए। तो ट्राइकार्पलरी ओवरी, मतलब 3 कार्पल्स होते हैं, सिनकार्पस यानी कि फ्यूज्ड गाइनोशियम होता है। ऐसा फ्लावर किस में देखा जाता है? तो अगर हम बात करें तो बेसिकली ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है सोलेनेसिए फैमिली का, ना कि लिलिएसिए, फैबेसिए या पोएसिए। तो सही जवाब सोलेनेसिए। इट्स व्हाट इज द डायरेक्ट क्वेश्चन, सोलेनेसिए इसका सही जवाब बनता है। प्लासेंटा एंड पेरिकार्प आर बोथ एडिबल पोर्शंस इन, प्लासेंटा और पेरिकार्प दोनों भी खाने लायक इनमें से किस में होते हैं? टोमेटो में, पोटैटो में, एप्पल में या बनाना में? तो बेसिकली अगर हम इनमें से सभी को देखें तो टोमेटो एक ऐसा फ्रूट है जिसे हम वेजिटेबल के तरह पर यूज़ करते हैं, उसका प्लासेंटा और पेरिकार्प सब कुछ एडिबल होता है, इसीलिए सही जवाब बनता है टोमेटो। Then, which of the following statements is correct? A proteinaceous alluron layer is present in maize grain. A sterile pistil is called a staminode. The seed in grasses is not endospermic. Mango is a parthenocarpic fruit. इनमें से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है ये आपको पहचानना है। देखिए यहाँ पर ध्यान से, प्रोटीनेशियस ऑल्यूरॉन लेयर इज प्रेजेंट इन बेस ग्रेन, ये बिल्कुल सही जवाब है। वेरा स्टेराइल पिस्टल स्टेमिनोड नहीं कहा है, पिस्टल और स्टेमिनोड, स्टेमिनोड मेल पार्ट हो गया तो ये गलत हो गया। सीड इन ग्रास इज नॉट एंडोस्पर्मिक, इट्स एंडोस्पर्मिक, तो ये भी गलत हो गया। मैंगो पार्थिनोकार्पिक फ्रूट नहीं है, वो सीड बियरिंग फ्रूट होता है। बनाना पार्थिनोकार्पिक फ्रूट हो सकता है। देन when the margins of sepals or petals overlap one another without any particular direction, the condition is termed as, बिना किसी कंडीशन के सेपल और पेटल ओवरलैप कर रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, तो उस टाइप के एस्टिवेशन को हम क्या कहते हैं? ट्विस्टेड, वेलवेट, वेक्सिलरी और इम्ब्रिकेट। ट्विस्टेड कहते हैं, वेलवेट कहते हैं, वेक्सिलरी कहते हैं या इम्ब्रिकेट टाइप ऑफ एस्टिवेशन। तो किसी भी डायरेक्शन के बिना अगर ये प्रोसेस हो रहा है तो बेसिकली हम उसको इम्ब्रिकेट टाइप ऑफ एस्टिवेशन कहते हैं। ओके, सो इम्ब्रिकेट टाइप ऑफ एस्टिवेशन अगर आप देखें तो इस तरह से हो सकता है उसका, ठीक है, इम्ब्रिकेट विदाउट एनी डायरेक्शन, तो यही इसका सही जवाब है। देन वेक्सिलम इज फाउंड इन, वेक्सिलम नाम का जो पेटल का कंडीशन होता है वो किस फैमिली में देखा जाता है? रोजेसिए, पैपिलियोनेसिए, क्रूसिफेरे या सोलेनेसिए? सोलेनेसिए, क्रूसिफेरे और रोजेसिए में वेक्सिलम नहीं देखा जाता है। बेसिकली ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है पैपिलियोनेसिए फैमिली का, सो पैपिलियोनेसिए इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। देन इन्फ्लोरेसेंस इन जवार इज, जवार में किस टाइप का इन्फ्लोरेसेंस आपको देखने को मिलता है? यहाँ पर ऑप्शंस आपके सामने है, कोरिम्ब, स्पाइक, पैनिकल और हेड। कोरिम्ब एक अलग इन्फ्लोरेसेंस है, स्पाइक एक और अलग इन्फ्लोरेसेंस है,
पैनिकल और हेड की अगर बात करें, हेड यानी कि बेस वाला एक इन्फ्लोरेसेंस होता है, कैपिटलम भी कहते हैं उसको। तो सही जवाब बनता है इसका जवार का, एक ऐसा लंबा सा स्पैडिक्स जैसा एक इन्फ्लोरेसेंस होता है, ओके, क्लस्टर ऑफ स्पाइक और स्पैडिक्स के जैसा, तो उसको हम पैनिकल भी कहते हैं। तो सही जवाब इसका बनता है पैनिकल टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस इज द राइट आंसर फॉर जवार। देन द कैपिटलम इन्फ्लोरेसेंस, कैपिटलम यानी कि बेस पर सिचुएटेड एक इन्फ्लोरेसेंस होता है, ये वाला बेस है और इसी के ऊपर पूरा क्लस्टर ऑफ इन्फ्लोरेसेंस बसा हुआ होता है। इस टाइप के इन्फ्लोरेसेंस को हम कैपिटलम इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं। क्लस्टर ऑफ इन्फ्लोरेसेंस देखने को सिंगल फ्लावर जैसा लगता है। तो ये किस फैमिली में देखने को मिलता है आपको? मैरीगोल्ड्स, सैल्विया, यूफोबिया या जैस्मिन। जैस्मिन एक सिंगल फ्लावर है, वो कोई इन्फ्लोरेसेंस तो नहीं है। अगर हम बात करें मैरीगोल्ड्स की, एस्टरेसिए फैमिली, मैरीगोल्ड हो गया, क्रिसैंथेमम हो गया, या फिर डैलिया हो गया, सनफ्लावर हो गया, ये सारे कैपिटलम इन्फ्लोरेसेंस हैं। ठीक है बेटा, कैपिटलम इन्फ्लोरेसेंस का बेस्ट एग्जांपल बनता है मैरीगोल्ड। देन next part is umbel inflorescence is found in Musa, Colocasia, Coriandrum, Helianthus। umbel एक डोम शेप्ड इन्फ्लोरेसेंस होता है। इफ यू सी, ये वाला इन्फ्लोरेसेंस इस तरह से एक क्लस्टर बना हुआ होता है फ्लावर्स का, और इसको हम अम्बेल इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं। तो आपने अगर कोरिएंड्रम प्लांट्स को देखा है ध्यान से, कोरिएंडर प्लांट्स, तो इसका इन्फ्लोरेसेंस अम्बेल टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस ही होता है। तो इसका सही जवाब है कोरिएंड्रम इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। प्लासेंटेशन इन टोमेटो एंड लेमनीज, टोमेटो और लेमन में किस प्रकार का प्लासेंटेशन आपको देखने को मिलता है? पेराइटल, फ्री सेंट्रल, मार्जिनल और एक्साइल प्लासेंटेशन। तो ये भी एक बहुत उम्दा सवाल हम कह सकते हैं, ओके, बहुत ही बेसिक और अच्छा सा सवाल है यहाँ पर। तो इसका भी जवाब ले लेते हैं। पेराइटल है, फ्री सेंट्रल है, मार्जिनल है या एक्साइल है। टोमेटो और लेमन हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। अगर टोमेटो आपने कट किया है या लेमन कट किया है तो उसमें ऐसे कंपार्टमेंट्स बने हुए होते हैं, राइट, और इन कंपार्टमेंट्स के अंदर ओव्यूल्स होते हैं जो आगे चलकर सीड में डेवलप हो जाते हैं। तो इसको हम क्या टाइप का प्लासेंटेशन कहते हैं? एक्साइल प्लासेंटेशन। सो द राइट आंसर इज एक्साइल प्लासेंटेशन। देन the gynoecium consists of many free pistils and flowers of। gynoecium में बहुत सारे free pistil flowers होते हैं। उस flowers को, उस टाइप के flowers किस plant में पाए जाते हैं? In which plants do you find such type of inflorescence is the question। एलोवेरा, टोमेटो, papaver और मैशिलिया। अगर हम ध्यान से देखें, ये सारे ये जो चैप्टर है, ये जो क्वेश्चन है, ये बेसिकली आपके नेचर को देखे होने के बाद इसका आंसर आप बहुत आसानी से दे सकते हैं। यू मस्ट नो फ्लावर्स, यू मस्ट नो सीड्स, यू मस्ट नो फ्रूट्स, बहुत ही कॉमन सा टॉपिक है। इसमें साइंस ज़्यादा पता हो ना हो, बट अगर आपको एग्जाम्पल्स अच्छी तरीके से पता हैं तो यू विल गेट द आंसर्स वेरी वेरी परफेक्टली। एंड फॉर दैट द राइट आंसर शुड बी, out of these four in the 19th question, it should be Machilia। Machilia और Mechelia जो फ्लावर्स होते हैं, चंपक फ्लावर्स भी कहते हैं उसको, बहुत अच्छा सुगंध होता है इसका, और उसका इटारियो जैसा एक बंच ऑफ इटारियो जैसा एक फ्रूट होता है मैशल्स में। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वाला अच्छा है। गिवन बिलो इज अ फ्लोरल डायग्राम। ध्यान से इस फ्लोरल डायग्राम को देख लीजिए। Which of these descriptions of flower matches the floral diagram? ये फ्लोरल डायग्राम दिया गया है, इस फ्लोरल डायग्राम को इनमें से कौन सा डिस्क्रिप्शन बहुत अच्छी तरीके से मैच करता है वो आपको यहाँ पर पहचानना है। तो आपके सामने पड़े हुए हैं ऑप्शंस, देख लीजिए सर। सबसे पहले तो डायग्राम को, ऑप्शंस हैं होमोक्लाइमडस, गैमोपेटलस, टेट्रामेरस, यूनिसेक्सुअल, Heteroclimidus, Gamopetalus, pentamerous, bisexual, Heteroclimidus, Gamopetalus, tetramerous, bisexual, Homoclimidus, polypetalus, pentamerous, bisexual। तो इनमें से अगर हम जवाब देखें बहुत ध्यान से, ठीक है, तो इसमें ये पहली बात तो हेटेरोक्लाइमिडस है, राइट, हेटेरोक्लाइमिडस है। देन जो पेटल्स है वो फ्यूज्ड हैं, उसको हम गैमोपेटलस कहते हैं। देन 5 पेटल्स हैं, राइट, तो उसको पेंटामेरस हो गया। 5 हैं सभी, एंथर्स 5 हैं, पेटल्स 5 हैं, सेपल्स 5 हैं, तो सारे पेंटामेरस हो गया। देन बाइसेक्सुअल है, उसमें ओवरी भी है और एंथर्स भी है, तो बाइसेक्सुअल है। सही जवाब इसका बी बनता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। फ्लावर्स आर जाइगोमॉर्फिक इन, जाइगोमॉर्फिक फ्लावर इनमें से किन में पाए जाते हैं? गुलमोहर में, टोमेटो में, धतूरा में या मस्टर्ड में? बहुत ही सिंपल और आसान सा सवाल आपके सामने यहाँ पर पड़ा हुआ है एंड द राइट आंसर आउट ऑफ दिस यू नो। ओके, सो गुलमोहर है, टोमेटो है, धतूरा है या मस्टर्ड है। तो जाइगोमॉर्फिक की अगर हम बात करें तो वो बाइलैटरल सिमेट्रिकल होता है, और अगर हम एक्टिनोमॉर्फिक की बात करें वो रेडियली सिमेट्रिकल होता है, राइट। तो मस्टर्ड, टोमेटो और धतूरा में रेडियल सिमेट्री होती है। जाइगोमॉर्फिक फ्लावर इज इन गुलमोहर, बिल्कुल सही जवाब है इसका। अगले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। टाइप ऑफ एस्टिवेशन शोन बाय पाइसम इज, पाइसम सतैवम में कौन सा टाइप का एस्टिवेशन आपको देखने को मिलता है? इम्ब्रिकेट, वैक्सिलरी, ट्विस्टेड और क्विंकंसियल। तो अगर हम बात करें तो एक टाइप का एस्टिवेशन होता है जिसमें विंग्ड कील्स वगैरह ऐसे पाए जाते हैं, राइट। द फ्लावर इज जनरली इज क्लस्टर ऑफ विंग्ड बीन्स, विंग्ड छोटे कील्स होते हैं, फिर पेटल्स होते हैं। तो इस टाइप के एस्टिवेशन को हम कहते हैं वैक्सिलरी टाइप ऑफ एस्टिवेशन, राइट। सो इसका सही जवाब वैक्सिलरी एस्टिवेशन है। एक बड़ा वाला पेटल, फिर ऐसे छोटे दो फ्यूज्ड पेटल्स, ठीक है, फिर उसके अंदर छोटे और पेटल्स होते हैं, तो उसको हम वैक्सिलरी टाइप ऑफ एस्टिवेशन कहते हैं। यही इसका सही जवाब बनता है। देन the following are the diagrams that represent types of estivation in corolla. Identify the correct combination of labelings. आपको A, B, C, D में से correct labeling पहचानी है। पहले तो डायग्राम देख लीजिए, ये A, B, C और D, ठीक है। तो A में मार्जिन्स ऑफ पेटल्स टच नहीं कर रहे हैं तो उसको हम वेलवेट एस्टिवेशन कहते हैं। B में मार्जिन्स स्लाइटली ओवरलैप ईच अदर कह रहे हैं हम उसको, तो उसको हम कहते हैं ट्विस्टेड एस्टिवेशन। सी में पार्शियल ओवरलैपिंग है मगर रैंडम है, इन पर्टिकुलर सीक्वेंस में नहीं है, तो उसको हम इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन कह सकते हैं। डी में एक बड़ा पेटल और दो छोटे छोटे पेटल्स होते हैं, उसको हम वैक्सिलरी एस्टिवेशन कहते हैं। तो इसका सही जवाब बनता है डी, वेलवेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट एंड वैक्सिलरी एस्टिवेशन। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। When stigma shows a feathery appearance, it is, अगर स्टिग्मा फेदर जैसा होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? प्लूमोस टाइप ऑफ स्टिग्मा, साइमोस टाइप ऑफ सिग्मा, ग्लोबोस टाइप ऑफ सिग्मा और रेसिमोस टाइप ऑफ स्टिग्मा। अगर फेदर जैसा अपीयरेंस है तो उसको एक पर्टिकुलर साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है एंड द टर्म यूज्ड इज प्लूमोस स्टिग्मा इज द राइट आंसर फॉर दिस। अगला क्वेश्चन भी डायग्राम बेस्ड है, ले लीजिए। In the diagram of types of placentation given below, A, B, C and D respectively represent, A क्या रिप्रेजेंट करता है, B क्या रिप्रेजेंट करता है, C क्या रिप्रेजेंट करता है और D क्या। ये बहुत आसान सा है। इसके हम प्लासेंटेशन की बात करें तो A इज एक्साइल प्लासेंटेशन, ये वाला जो है वो एक्साइल प्लासेंटेशन को डिपिक्ट करता है। B जो है वो बेसल प्लासेंटेशन है, ओके, मोनोकॉट्स में पाया जाता है बेसल प्लासेंटेशन। ये वाला जो है वो पेराइटल प्लासेंटेशन है, ठीक है, दिस इज पेराइटल प्लासेंटेशन। और लास्ट वाला जो है वो सेंटर में है, उसको हम फ्री सेंट्रल प्लासेंटेशन कह सकते हैं, दिस इज फ्री सेंट्रल। तो इसका ऑप्शन देखिए, एक्सियल, बेसल, पेराइटल और फ्री सेंट्रल, सी इज द राइट आंसर फॉर दिस। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। Gynoecium in the members of family Leguminosae is composed of, Gynoecium leguminous family में किस प्रकार का बना होता है? 2 कार्पल्स से बना होता है, 1 कार्पल, 5 कार्पल या 3 कार्पल। So usually it is monocarpellary ovary, so the right answer is single carpel. A fruit developed from a condensed inflorescence, condensed inflorescence एक cluster inflorescence होता है, उससे जो फ्रूट डेवलप होता है उसको हम किस प्रकार का फ्रूट कहते हैं? सिंपल फ्रूट, एग्रीगेट फ्रूट, कंपोजिट फ्रूट और इटारियो। इटारियो तो बंच ऑफ छोटे छोटे फ्रूट्स के कंपार्टमेंट से बनता है। कंपोजिट फ्रूट यानी कि इटारियो जैसा होता है। एग्रीगेट फ्रूट इसका सही जवाब है। एग्रीगेट फ्रूट इज द वर्ड विच वी यूज फॉर कंडेंस्ड इन्फ्लोरेसेंस से बने हुए फ्रूट को।
देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज व्हीट फ्रूट, व्हीट के फ्रूट को हम किस टाइप का फ्रूट कह सकते हैं? एकिनी, इटैरी ऑफ एकिनीज, सिप्सल्ला, कैरियोप्सिस और एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म तो सीड का पार्ट है, राइट। तो अगर हम व्हीट की बात करें उसके फ्रूट को हम कहते हैं कैरियोप्सिस टाइप ऑफ फ्रूट। देन इन विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट द एडिबल पार्ट इज एरिल। एक एरिल ऐसा होता है, बाहर का हार्ड स्ट्रक्चर होता है, अंदर एक जेली जैसा स्ट्रक्चर होता है, उसको एरिल कहते हैं, और उसके बीच में हार्ड सीड होता है जो कि नॉन एडिबल होता है। बेसिकली ऐसा स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है किस प्लांट में, ये क्वेश्चन पूछा है, एप्पल में, पोमोग्रेनेट में, ऑरेंज में या लीची में। अगर हम जूसी एरिल की बात करें तो वो होता है लीची में। लीची में जो चीज़ आप खाते हैं वो एरिल कहलाता है। एरिल इज द वर्ड यूज्ड फॉर इट। देन कैरियोप्सिस इज फाउंड इन, कैरियोप्सिस कैरेक्टरिस्टिक फीचर है मोनोकॉट प्लांट्स का। अभी थोड़ी देर पहले हमने वीट के बारे में डिस्कस किया था। सनफ्लावर, मेज, पी और दतूरा, इनमें से अगर हम बात करें कैरियोप्सिस की तो कैरियोप्सिस बेसिकली पाया जाता है मेज प्लांट में जो कि एक मोनोकॉट है। अगले क्वेश्चन को ले लेते हैं। स्टडी ऑफ फ्रूट्स इज कॉल्ड एज, स्टडी ऑफ फ्रूट्स को हम क्या कह सकते हैं? पैलिनोलॉजी, पोमोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी और मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी तो इससे रिलेटेड नहीं है। पैलिनोलॉजी इज रिलेटेड टू स्टडी ऑफ पोलन ग्रेन्स, पोमोलॉजी इज स्टडी ऑफ फ्रूट्स एंड देयर कल्टिवेशन। तो करेक्ट आंसर बनता है पोमोलॉजी। Then, fleshy fruits with stony endocarp are called as capsules, berries, pomes और drupes. अगर हम fleshy fruits की बात करें जिसका endocarp बहुत ही hard होता है, तो basically that particular word we use it for drupe type of fruits. Mango इसका best example है, coconut भी एक example है, ठीक है। तो ये epicarp हो गया, ठीक है, और endocarp stony होता है, ये वाला hard होता है। So right answer is drupes. Then, pome fruit is not found in mango, apple, lychee, peach. पोम फ्रूट किस में आपको देखने को मिलता है? ओके, किसमें देखने को नहीं मिलता है? एप्पल, लीची, पीच ये तीनों पोम टाइप के फ्रूट्स कहलाते हैं, whereas मैंगो इज ए ड्रूप टाइप ऑफ फ्रूट। तो सही जवाब है ए। देन विच वन ऑफ दीज इज अ सूडोकार्प, इनमें से कौन सा एक सूडोकार्प है या फॉल्स फ्रूट है? एप्पल, गुआवा, टोमेटो या बनाना। बनाना, टोमेटो, गुआवा ये सारे ओवरीज से ही बनते हैं, इसलिए वो ट्रू फ्रूट्स हैं। वhereas थैलेमस से जो डेवलप होता है वो एप्पल, पीच नहीं सॉरी एप्पल और पेयर्स होते हैं, तो इसीलिए बेसिकली इसका सही जवाब एप्पल है। एप्पल इज अ पोम टाइप ऑफ फ्रूट। Then, dry indehiscent single-seeded fruit formed from bicarpellary syncarpous inferior ovary is. यहाँ पर सिंगल सीडेड फ्रूट की बात हो रही है और बाइकार्पलरी और सिनकार्पस इंफीरियर ओवरी यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। वो कौन सा है? कैरियोप्सिस है, सिप्सल्ला है, बेर्री है या क्रीमोकार्प है? इनमें से कौन सा आपको देखने को मिलता है? तो चलिए इसका भी जवाब आप सोचिए, तब तक एक्सप्लेनेशन में दे ही देता हूँ। अगर इंडेहिसेंट है, इंडेहिसेंट यानी कि वो आसानी से ब्रेक होकर सीड डिस्पर्सल नहीं करते हैं, तो उस टाइप के फ्रूट्स को हम कहते हैं सिप्सला टाइप ऑफ फ्रूट। तो सही जवाब इसका बनता है सिप्सला टाइप ऑफ फ्रूट्स। जियोकार्पिक फ्रूट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय, जियोकार्पिक यानी कि फ्रूट्स जो अंडरग्राउंड मैच्योर होते हैं, फ्रूट्स दैट मैच्योर अंडर द सॉइल। विच ऑफ देम आर द एग्जाम्पल्स? कैरेट है, ऑनियन है, ग्राउंडनट है या वाटरमेलन है? तो फ्रूट्स की अगर बात करें, कैरेट के फ्रूट्स या सीड्स अबव द ग्राउंड ही फॉर्म होते हैं। कैरेट इटसेल्फ इज नॉट अ फ्रूट, इट इज अ रूट, वो एक रूट का पार्ट है। ऑनियन बल्ब होता है, उसके भी सीड्स ऊपर अबव द सॉइल ही पैदा होते हैं। ग्राउंडनट एक ऐसा फ्रूट है जो अंडरग्राउंड ग्रो होता है। वाटरमेलन अबव द ग्राउंड ही ग्रो होता है। तो सही जवाब इसका ग्राउंडनट है। मैच्योरेशन ऑफ फ्रूट्स एंड सीड below the soil is groundnut. Then, drupe contain stony endocarp, stony mesocarp, edible epicarp, edible endocarp. अगर इसकी हम बात करें ड्रूप की, थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था, इसका स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है स्टोनी एंडोकार्प। स्टोनी एंडोकार्प यानी कि बहुत ही हार्ड
एंडोकार्प होता है, कवरिंग ऑफ सीड हार्ड होता है, तो सही जवाब है स्टोनी एंडोकार्प। देन द एडिबल पार्ट इन हेस्पेरिडियम फ्रूट इज, हेस्पेरिडियम टाइप के फ्रूट में एडिबल पार्ट कौन सा होता है? पेरिकार्प एडिबल होता है, मिसोकार्प एडिबल होता है, जूसी हेयर एडिबल होता है, या एंडोकार्प एडिबल होता है? इसमें एंडोकार्प तो बेसिकली पाया नहीं जाता है, पेरिकार्प और मिसोकार्प दोनों ही नॉन एडिबल होते हैं। एक्चुअल पार्ट जो एडिबल होता है वो जूसी हेयर इसका सही जवाब है। ऑरेंज की अगर हम बात करें, सिट्रस फ्रूट्स में जो आप खाते हैं वो छोटे छोटे रेशे जैसे जो स्ट्रक्चर्स होते हैं नींबू में, ऑरेंजेस में, उसको जूसी हेयर कहते हैं और उस टाइप के फ्रूट को हेस्पेरिडियम टाइप ऑफ फ्रूट ऐसा कहा जाता है। देन मोस्ट एडवांस्ड फ्रूट इज, इनमें से कौन सा फ्रूट बहुत ही एडवांस्ड है? सिप्सल्ला, कैरियोप्सिस, पोम और इटारियो ऑफ ट्रूप्स। अगर इसकी हम बात करें अगर बॉटनी की, तो सबसे एडवांस्ड फ्रूट माना जाता है सिप्सल्ला इज कंसिडर्ड एज मोस्ट एडवांस्ड टाइप ऑफ फ्रूट। अगला क्वेश्चन डायग्राम बेस्ड है, देख लीजिए। इन दिस डायग्राम शोइंग एलएस ऑफ एन एम्ब्रियो आइडेंटिफाई द अल्फाबेट्स ए बी सी डी ई एफ जी ई एफ। ठीक है, तो ए बी सी डी ई एफ अल्फाबेट्स यहाँ पर दिए गए हैं। ये मोनोकॉट एम्ब्रियो का डायग्राम है और इस मोनोकॉट एम्ब्रियो में आपको पहचानना है सही लेबलिंग्स। ठीक है, तो चलिए इसका भी जवाब ले ही लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें, ए इज एपीब्लास्ट, ए एपीब्लास्ट है, ओके। देन बी यहाँ पर जो दिख रहा है वो रेडिकल हो गया, और सी अगर हम बात करें, ठीक है, सी की अगर हम बात करें तो वो कोलियोप्टाइल है। सी इज कोलियोप्टाइल, शूट को डेवलप करने वाला रीजन, देन उसको कवर करने वाला, शूट को कवर करने वाला। देन डी अगर हम बात करें ये रेमिनेंट ऑफ स्क्यूटलम है। ई अगर हम बात करें, ई यहाँ पर है, इट्स कॉल्ड एज कोलोराइजा, और एफ शूट एपेक्स। तो इसमें सही जवाब बनता है डी, ए एपीब्लास्ट, बी रेडिकल, सी कोलियोप्टाइल, डी स्क्यूटलम और ई कोलियोराइजा, एफ शूट एपेक्स। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, ये भी डायग्राम बेस्ड है। द डायग्राम ऑफ सेक्शन ऑफ मेज ग्रेन बिलो is given and identify A, B, C, D labelings। तो मोनोकॉट एम्ब्रियो, सॉरी मोनोकॉट एम्ब्रियो के बाद मोनोकॉट सीड है यहाँ पर। A क्या है, B क्या है, C क्या है, D क्या है, ये भी एक बार देख लेते हैं, चलिए। ठीक है, तो फर्स्ट अगर हम बात करें ए इज एंडोस्पर्म, ए इज एंडोस्पर्म। देन बी अगर हम बात करें, इट्स कॉल्ड एज कोलियोप्टाइल। सी वी कैन कॉल इट एज स्क्यूटलम। डी इज scutellum and C should be radical, बट यहाँ पर ऑप्शंस में थोड़ा सा मैसअप हो गया, राइट? तो सही जवाब यही है, ठीक है। एक सेकंड, एक बार देख लेते हैं। तो चलिए इसका जवाब एक बार फिर से देख लेते हैं। ए इज एंडोस्पर्म, बिल्कुल सही, राइट। देन बी इज कोलियोप्टाइल, सी इज क्यूटलम एंड डी इज एपिथेलियम। तो सही जवाब बनता है सी इस ऑप्शंस में। देन सीड पोजेसेस स्पॉन्जी एरिल इन, स्पॉन्जी एरिल कौन सा सीड्स में पाया जाता है? आइकॉर्निया में, पोटामेकाटॉन में, सेगिटारिया में, निम्फिया में। अगर हम स्पॉन्जी एरिल की बात करें तो बेसिकली आप लिलिएसिए फैमिली में या निम्फेसिए, जो वाटर लिलीज होते हैं या लोटस होते हैं, उनमें स्पॉन्जी एरिल देखने को मिलता है। तो सही जवाब इसका निम्फिया इज द राइट आंसर। The endosperm is used by cotyledon, then the cotyledon is called as single, albuminous, endospermic और नॉन एंडोस्पर्मिक। अगर हम बात करें एंडोस्पर्म कॉटिलिडन यूज कर रहा है तो उस टाइप के सीड को हम किस प्रकार का सीड कह सकते हैं, ये सवाल है यहाँ पर। उसको हम नॉन एंडोस्पर्मिक सीड कहते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, पैराशूट मैकेनिज्म ऑफ सीड डिस्पर्सल। आपने देखा होगा जब सीड मैच्योर हो जाते हैं तो उसका सीड ऐसा फटकर पैराशूट की तरह हवा में उड़ने लगते हैं, उसको पैराशूट मैकेनिज्म ऑफ सीड डिस्पर्सल कहा जाता है। वो किस में देखने को मिलता है? पॉपी में, पॉपी यानी कि एक टाइप का प्लांट है जिसको खसखस जिससे प्रोड्यूस होता है, भांग प्रोड्यूस होता है, राइट। हेलियांथस यानी कि सनफ्लावर, प्लम्बैगो और लोटस।
अगर इनमें से हम बात करें पैराशूट मैकेनिज्म की, तो बेसिकली ये आपको देखने को मिलता है हेलियांथस में, आपको देखने को मिलता है। देन सीरियल्स मोस्टली बिलोंग टू, सीरियल्स जो सीड्स होते हैं वो कौन से फैमिली को बिलोंग करते हैं? क्रूसिफेरे, ब्रासिकेसिए, पोएसिए, एस्ट्रेसिए। अगर मोस्ट ऑफ द सीरियल्स की अगर हम बात करें दे बिलोंग टू द फैमिली पोएसिए, तो इसका सही जवाब बनता है, सीरियल्स और मिलेट्स की अगर हम बात करें तो पोएसिए फैमिली को सबसे ज्यादा वो बिलोंग करते हैं, तो राइट आंसर इज पोएसिए। द करेक्ट फ्लोरल फार्मूला फॉर चिली इज, चिली का फैमिली अगर आपको पता है तो इसका सही जवाब आपको मिल जाएगा, राइट। तो ए बी सी डी ऑप्शंस आपके सामने हैं, ये आप थोड़ा ध्यान से देखें और यू कैन गिव द आंसर। अगर इसका हम सवाल का जवाब यहाँ पर देखने की कोशिश करें तो पहले तो चिली भी होता है रेडियल सिमेट्रिकल बायसेक्सुअल, देन कैलिक्स कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, सभी 5-5 होते हैं। कैलिक्स कोरोला फ्यूज्ड होते हैं, एंड्रोशियम और कोरोला भी फ्यूज्ड होते हैं, तो इसका सही जवाब बनता है बी, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है। देन द फ्लोरल फार्मूला जो कि आपको यहाँ पर दिख रहा है इज दैट ऑफ, ये फ्लोरल फार्मूला किस प्लांट का हो सकता है? टुलिप का हो सकता है, सोयाबीन का हो सकता है, सन हेम्प का हो सकता है, या टोबैको का। तो अगर हम बात करें फिर से इस प्लांट की, तो ये फैमिली बिलोंग करता है जनरली टोबैको के फैमिली को, तो सही जवाब है टोबैको। Then, simple cluster of radial leaves, stipulate and parallel venation leaves and cyme or umbel inflorescence are the characteristics of, ये characters किस particular family के हैं ये आपको बताना है, Poaceae, Liliaceae, Asteraceae या Fabaceae। Simple cluster of radial leaves, radially leaves arrange होते हैं, stipulate हैं, पैरेलल वेनेशन है उनके लीव्स में, साइम और अम्बेल टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस आपको देखने को मिलता है। तो इसका सही जवाब है लिलिएसिए फैमिली में बेसिकली ये देखने को आपको मिलता है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, इन्फ्लोरेसेंस ऑफ फैमिली कंपोजिटे, कंपोजिटे फैमिली में किस टाइप का इन्फ्लोरेसेंस देखने को मिलता है? कंपोजिटे को अदरवाइज ऑल्सो कॉल्ड एज एस्टरेसिए या फिर सनफ्लावर फैमिली, डेजी फैमिली भी कहा जाता है, पेरियांथ, लोडिक्यूल्स, कैपिटुलम या हाइपेंथोडियम। हाइपेंथोडियम तो फाइकस में होता है, लोडिक्यूल्स और पेरियांथ भी इसका आंसर नहीं है, सही जवाब कैपिटुलम टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस इनमें देखने को मिलता है। Then bicarpellary syncarpous ovary with axile placentation is seen in, bicarpellary यानी कि दो कार्पल्स होते हैं, syncarpous यानी कि फ्यूज्ड, और एक्साइल प्लासेंटेशन आपको किस फैमिली में देखने को मिलता है? सोलनेसिए, सिसैल्पेनेसिए, एस्ट्रेसिए या मालवेसिया। बाइकार्पलरी की अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर तो सोलनेसिए में ये स्पेसिफिक कैरेक्टर आपको देखने को मिलता है। Then, most of economically important fiber-yielding plants belong to the family Malvaceae, Solanaceae, Cruciferae, Poaceae। जो हम फाइबर प्रोड्यूस करते हैं, फाइबर प्रोड्यूस करने वाले प्लांट्स बेसिकली कौन से फैमिली को ज़्यादा से ज़्यादा बिलोंग कर पाते हैं? तो अगर हम कॉटन की ही बात करें तो मैक्सिमम दे बिलोंग टू मालवेसिए फैमिली, इसका सही जवाब बनता है। ज्यूट हो गया या फिर अपना कॉटन हो गया, मालवेसिया सही जवाब है। लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं आज के लिए, द प्रेजेंस ऑफ परसिस्टेंट कैलिक्स इज अ फीचर ऑफ फैमिली सोलनेसिए, ग्रामिनेसिए, मालवेसिए, कंपोजिटे। अगर हम परसिस्टेंट कैलिक्स की बात करें, कैलिक्स परसिस्टेंट होता है, इवन द फ्रूट में भी परसिस्टेंट होता है, सोलेनेसिए फैमिली में परसिस्टेंट कैलिक्स होता है, इसका सही जवाब सोलेनेसिए है। आप ब्रिंजल देख लीजिए तो इसका सही जवाब आपको मिल जाएगा, सही जवाब सोलेनेसिए इसका बिल्कुल 100% सही जवाब है। तो ठीक है, आज का सेशन यहीं पर हम समाप्त कर लेते हैं और अगले सेशन में हम मिलेंगे सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, एक और चैप्टर के साथ, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के साथ हम मिलेंगे अगले सेशन में जो कि कल होगा। ठीक है, तो सेल द यूनिट ऑफ लाइफ की चर्चा हम MCQ को लेकर करेंगे, उसके बाद मैं थ्योरी क्लासेस भी लूँगा। ओके, सो जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स हैं
आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं इस यूट्यूब चैनल पर, सब्सक्राइब कर सकते हैं। नोटिफिकेशन आइकन को आप बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। और दूसरी बात अगर मैं बता दूं तो आप थ्योरी क्लासेस भी अगर चाहते हैं तो आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं। मैं रोज़ाना रेगुलर आपके रूटीन के हिसाब से मैं क्लासेस लेने के लिए तैयार हूँ। सिर्फ हिंदी में ही नहीं, थोड़ा बहुत एक्चुअली मैं बेसिकली इंग्लिश मीडियम से बिलोंग करता हूँ। इंग्लिश में ही ज़्यादा टीच करना मुझे अच्छा लगता है, बट आई कैन ऑल्सो हेल्प यू टू अंडरस्टैंड विद अदर लैंग्वेजेस लाइक दैट ऑफ इन हिंदी एज वेल एज इन कन्नड़ा। तो आपको कोई भी डिफ़िकल्टीज़ हो आप कमेंट में लिख सकते हैं। आपको कोई भी टॉपिक पर डिस्क्रिप्शन चाहिए वो भी आप कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।